ठीक है बड़ी। हाँ हाँ जिते कल वेठो है। ओके okay. Yesterday we covered United Nation and talked about its uh, structure, its secretariat, secretary generals. Then we talk about Yalta Conference in Crimea, Russia, 1945 in the month of February, which was the result, which resulted into the formation of United Nations. And United Nations was set up on 24 October 1945. Then we covered the purposes of the United Nations. It works to strengthen the world order and it accepts the anarchy that states cannot be controlled because they are sovereign, they are independent, and they hold territorial integrity. And to settle the disputes without the use of forces. Then we talked about the UN Charter that deals with the UN structure, security, and equality of states, and its states are sovereign in their affairs. Okay, the benefits are states are recognized that they hold global identity. UN resolve the conflicts among the states, and it provides international stability. Okay, this is the structure of the United Nations. General Assembly has three types of sessions: plenary, special, emergency, and each state is represented by 5 delegates and 1 vote. A state can put or forward only 1 vote. General Assembly is responsible to draft the budget of the UN and uh, appoint the judges of the International Court of Justice. 2/3 is required to pass any bill. Okay, then Security Council, an organ of the UN which deals with the disputes and security and maintains the peace and holds the veto power. And this is the list of the states which holds nuclear powers. And there are 5 permanent members and 15 non-permanent members. And Pakistan had been member among the non-permanent members. Then there is International Court of Justice, which deals with the issues concerning the states, and these issues can be resolved by the International Court of Justice through its jurisdictions, and 15 judges are appointed, and it is responsible in dealing with the clashes among the states, but the cases taken by the International Court of Justice should be forwarded by the both states conflicting with each other. Secretary General is the executive body of the UN, and it is nominated by the Security Council, and its president is the president of the world. Its president is not the president of the people of 7 billion, but the states members of the UN. Okay, then there is
Economic and Social Council, which deals with the economic and social and cultural and health issues. It has 54 members and elected for 3 years. It is elected by the General Assembly. Okay, then there is Trusteeship Council, which is responsible to hold the UN mandate over the colonies. There are certain states which holds the colonies, and UN Trusteeship Council requires them to transfer their mandate to the UN Trusteeship Council. And each state has a seat in this council, which holds a mandate on a colony. Okay, then UN also tries to maintain the peace, and it has also observatory commissions such as in Kashmir, and these are the these are the missions and the forces provided by the UN. UN has participated in these missions: Congo, Sudan, Libya, Syria, Iraq, India and Pakistan, and it requires army from Bangladesh, Ethiopia, India, Pakistan and Rwanda. Okay, then there is UN Women, which addresses the issues concerning equality and empowerment and gender equality, especially in women empowerment, and the women should be equally treated in the social, political and legal matters. There are certain programs UN holds, and there are some autonomous agencies, they work outside of the UN realm. Okay, its headquarters is in New York. Today we are going to talk about European Union, which is an association of 28 member states. They try to negotiate with the other states, and other states are trying to be member of this European Union. Now, what is the benefit of the being part of the European Union? There is just one currency of these European Union members. 28 countries who are member of European Union have just one currency, that is euro, and this is the institution or structure of the European Union. Okay, let's talk about the Brexit deal. What is the Brexit deal? Actually, Britain, one of the prominent member among the European Unions, has applied to exit from the European Union. This BR means British, and exit means to exclude. She wanted to exclude herself from the European Union. तो जब बरतानिया चाहता था कि वो यूरोपियन यूनियन से निकल जाए और उसका पार्ट नहीं बनना चाहता है, तो ब्रिटिश वाज साइनिंग अ ब्रेक्सिट डील विद द यूरोपियन यूनियन, and this deal was confirmed, and Britain withdraw from the European Union on 31st June 2020. Now Britain is not part of European Union. Its headquarters is in Belgium. The capital of the Belgium is Brussels, and there are most of the international organizations and agencies have Belgium as its headquarters. Let's talk about the North Atlantic Treaty Organization. Actually, it was formed on 4 April. It was formed or set up on April 4, 1949, in response to the communism, to stop communist expansions to the non-communist states, and it was a threat to the capitalist states. So United Nations was set up to halt communist expansions. Okay, there were some countries who were to be either communist or democratic or capitalist states, and Russia was investing into countries and trying to influence other states to be communist. And as I yesterday told you that the communist ideology ruled for 75 years on the globe, and there was US presence in the Europe. Not only Russia is in the east of the Europe, and
US in the west side of the Europe. Then US tried to influence European countries. Okay, US tried to influence European countries so that they should not join the communist bloc. And as many countries, yesterday I told you, China has completed its 100 years of Communist Party, and they wanted to prevent nationalism, as in the case of India itself. There were some nationalists, they were trying to uh, trying for the independence of their states. There were national movements in India as well. Okay, foster political unions. States were trying to union with other states so that they could prevent themselves from the communist or capitalist states. There were two blocks, one the capitalist and second one the communist bloc. Okay, then there was massive retaliations as we formed in the Korea War 1953, as I mentioned yesterday. And then states were trying to prevent nuclear war. As I told you yesterday, there was a missile crisis known as Cuban crisis of 1961, and it's also known as Armageddon situation, where world could be destroyed by this nuclear war, as Russia has brought its nuclear to the Cuba, and America has installed its nuclear in the Turkey. Okay, then let's talk about the acronym for the NATO, North Atlantic Treaty Organization. It's North Atlantic Treaty Organization, and 3/4 of the budget is spent by the US, and it was targeted 2% of the GDP is reached by the 4 countries: USA, UK, Greece, Estonia. एक्चुअली क्या था कि जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने कहा कि हमें जो आपकी कंट्री का जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका 2% जो है वो आप यूएन के मिलिट्री बजट में स्पेंड करें। जैसे हमारे पाकिस्तान में 2% जो है वो बजट आपका इन्वेस्ट होता है एजुकेशन में, इसी तरह वो कह रहे थे कि यूएन का जो बजट होना चाहिए वो सारे जो मेंबर कंट्रीज हैं इसके, वो मिलाकर 2% बजट जो है वो अपने जो उनके कंट्री का जो बजट है वो यूएन को दें, नेटो के दें, सॉरी। तो उसमें से सिर्फ 4 कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने ये टारगेट जो है वो अचीव किया था। लेट्स टॉक अबाउट कि इसका पर्पस क्या है। इट डील्स विद साइबर वॉरफेयर। ऐसे आपके जो साइबर अटैक्स हो रहे होते हैं कंप्यूटर पे, हैकर्स जो हो रहे होते हैं, इस तरह के हैकर्स से डील करने के लिए यूएन है। और इसके आर्टिकल 5 के मुताबिक इट आल्सो डील्स विद द काउंटर टेररिज्म। अब हम अफगानिस्तान की बात करें, जो हम कल बात कर रहे थे कि 1979 में रशिया ने जब अटैक किया तो फिर तालिबान बढ़े, फिर 2001-2 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का धमाका हुआ तो 2001 में अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर छेड़ दी, अफगानिस्तान में जाकर दहशतगर्दों से लड़ना शुरू कर दिया। तो फिर नेटो अपनी फोर्सेस लेकर आए थे, और जो कि अभी अमेरिका ने विड्रॉ कर दी हैं। तो ये क्या है कि ये वेपन मास रिस्ट्रिक्शन से भी डील करती है, जिसका मकसद क्या है कि ऐसे वेपन्स जो कि बड़े पैमाने पर इंसानों की तबाही कर सकते हैं, इसी वेपन मास रिस्ट्रिक्शन के बहाने पर उन्होंने सद्दाम हुसैन को 2003 में ये अफगानिस्तान में ये इंटर हुए, और 2006 में उन्होंने सद्दाम हुसैन को पकड़ा और उसे 2006 में फांसी दी गई। तो ये जो यूएन है, ये आपकी जो इंटरनल कू है, इट डज नॉट सपोर्ट सिविल और इंटरनल कू। जैसे आपको पता है कि तुर्की में रजब तय्यब एर्दोगान के दौर में भी मिलिट्री वालों ने कोशिश की थी कि वहाँ पर मार्शल लॉ लगा दें, तो लोग जो है वो टैंकों के नीचे आ गए थे। तो क्योंकि तुर्की मेंबर है यूएन का, तो नेटो ने उसमें इंटरफेयर नहीं की। नेटो जो है वो सिविल के जितने भी इश्यूज हैं स्टेट मेंबर स्टेट्स के, उनको वो सपोर्ट नहीं करता। हाँ, अगर कोई नॉन मेंबर स्टेट अलाइज जो है वो अटैक कर दे नेटो के इन मेंबर में से किसी भी मेंबर पर,
तो सारे मेंबर की फोर्सेस जो है वो मिलके इस पर अटैक करती हैं, अपने अलाइज को बचाती हैं। देन इसका नेटो का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसेल्स बेल्जियम में है, और ब्रसेल्स जो है वो बेल्जियम का कैपिटल है। लेट्स टॉक अबाउट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को 2001 में बनाया गया था, और तकरीबन कोई 30 मिलियन 189,000 स्क्वायर माइल का कोई एरिया है जो कंट्रीज इसके मेंबर हैं वो कवर करते हैं, और 1.5 बिलियन पॉपुलेशन जो है इसमें आ जाती है। टोटल जो इसकी पॉपुलेशन शंघाई मेंबर स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है, ये वो कंट्रीज हैं जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, जिसमें रशिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, और ताजिकिस्तान है, इंडिया है, पाकिस्तान है, और चाइना रिपब्लिक है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका है शंघाई में। इसके प्रिंसिपल्स जो है वो क्या है, इसके इसके प्रिंसिपल जो है वो म्यूचुअल ट्रस्ट है। स्टेट्स के दरमियान म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, और स्टेट जो है वो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करती हैं। जैसे आपने सीपेक का नाम सुना होगा। सीपेक इज अ विन विन सिचुएशन, विच मीन्स डेट इट डिपेंड अपॉन द म्यूचुअल बेनिफिट के सीपेक से चाइना को भी फायदा होगा और पाकिस्तान को भी फायदा होगा। जो मेंबर स्टेट्स हैं दे ऑल हैव इक्वल राइट्स। ऐसा नहीं है कि चाइना को ज्यादा राइट्स हैं या इंडिया को ज्यादा राइट्स हैं, नहीं, जो भी मेंबर हैं उनके राइट्स जो है वो इक्वल राइट्स हैं। ओके, देन इट डील विद द डाइवर्सिटी ऑफ द कल्चर, क्योंकि हर मुल्क में डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर पाई जाती है। हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में कोई 32 ज़बानें बोली जाती हैं, तो चाइना में भी ऐसा है, इंडिया में तो और ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं उनसे भी ये डील करती हैं। देन कॉमन डेवलपमेंट के ये जो मेंबर स्टेट्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए अभी इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो ओबोर है। वन बेल्ट वन रोड है। अब इस वन बेल्ट वन रोड के 6 कॉरिडोर हैं, जिसमें एक कॉरिडोर सीपेक है, और बाकी के कॉरिडोर इसमें आपका बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार कॉरिडोर भी है, फिर आपका मंगोलियन कॉरिडोर भी है, और फिर रशिया से भी ये कॉरिडोर जाता है, और इसका सिल्क रूट मेरीटाइम भी है जो कि आपके अरेबियन सी से, इंडियन ओशन से गुजरता हुआ, स्टेट ऑफ मलक्का से गुजरता हुआ, ये जो है ना कॉमन डेवलपमेंट के लिए कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। फिर इसका हेडक्वार्टर चाइना में है, बीजिंग में। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की हम बात करें तो बेसिकली क्या हुआ कि एक ज्यूज की पार्टी है जो जियोनिस्ट पार्टी कहलाती है। इस पार्टी ने मस्जिद अक्सा को 1969 में आग लगा दी। तो इसकी पहली कॉन्फ्रेंस जो है वो उन्होंने 1969 में रब्बात में रखी, जो कि कैपिटल है मोरक्को का, CCO। तो ये मोरक्को का कैपिटल है, और यहाँ पर मुस्लिम कंट्रीज के जितने भी स्टेट मेंबर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और फिर यहाँ पर इन्होंने ये डिसाइड किया कि हमने एक मुस्लिम कंट्रीज के लिए अलग से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। जैसे यूएन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी वर्ल्ड के लिए है, ग्लोबल है, इंटरनेशनल लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसी तरह मुस्लिम कंट्रीज की एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाने का इन्होंने सोचा था, और वो इन्होंने डिसाइड किया था रब्बात में। फिर इसकी सेकंड कॉन्फ्रेंस जो है वो इस्लामाबाद में हुई थी, एंड थर्ड कॉन्फ्रेंस इसकी जो है वो में रब्बात में हुई थी। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्रिंसिपल बॉडीज क्या हैं, देन देखते हैं कि इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या हैं। जितने भी स्टेट्स हैं, यस यस देन सर फर्स्ट ओके जी, देन इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि जितने भी मुस्लिम स्टेट्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना, यानी कि उनको मजबूत करना, और उनके दरमियान जितने भी एक्शंस हो उनको कोऑर्डिनेट करना। अगर कोई वर्क है, स्पेसिफिक वर्क है, कश्मीर इशू है या फ़लस्तीन इशू है, तो उन इस तरह के इश्यूज पर काम करना। देन इसके 3 जो है बॉडीज़ हैं इम्पोर्टेंट, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ किंग्स के नाम से है, जिसमें आपके यहाँ पर तो किंग दिया हुआ है, एक्चुअली इसमें हेड ऑफ स्टेट्स ऐसे मुल्क जिनके यहाँ सिर्फ प्रेसिडेंट होता है, और
फिर हेड ऑफ स्टेट्स, ऐसे मुल्क जिनके यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है जो कि गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव हेड होता है, वो जो है, और दूसरा सऊदी ममालिक जहां पर किंग रहते हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस में आकर पार्टिसिपेट करते हैं और डिस्कशंस करते हैं। देन कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, हर मुल्क के जो कि मुस्लिम कंट्रीज हैं जिसके 57 इसके मेंबर स्टेट्स हैं, तो 57 मेंबर स्टेट्स यानी कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। देन इसकी जनरल सेक्रेटरीट है जो इसके एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग और इस तरह के काम करती है। देन हम इसकी प्रिंसिपल्स की बात करें कि मुस्लिम कंट्रीज जितने भी हैं वो ओआईसी की नज़र में सारे इक्विवेलेंट हैं, उनको जो स्टेटस है दे आर इक्विवेलेंट, एंड जितने भी स्टेट्स हैं उनकी एक सेल्फ डिटर्मिनेशन है। देन देर इज नो इंटरफेरेंस के कोई एक मुसलमान मुल्क किसी दूसरे मुसलमान मुल्क के इंटरनल अफेयर्स जितने भी हैं, सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी भी स्टेट्स हैं मुस्लिम कंट्रीज, दे आर सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट। क्योंकि सोवरेन मतलब वो अपनी टेरिटरी की हिफाजत कर सकते हैं, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, बिकॉज ऑफ एनआर की सोवरेनिटी एग्जिस्ट करती है, और सारे मुल्क आज़ाद हैं क्योंकि यूएन ने इनको एज आ इंडिपेंडेंट स्टेट्स या कंट्रीज के तौर पर रिकॉग्नाइज किया हुआ है। अगर मुस्लिम कंट्रीज के दरमियान कोई डिस्प्यूट होता है, सपोज ईरान और सऊदी अरब के दरमियान में हुआ, तो देन ये जो है यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पर देखें कि ओआईसी की कोई आर्मी नहीं है, इन मुस्लिम कंट्रीज की कोई आर्मी नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी एशिया से लेकर अफ्रीका तक जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनकी एक करेंसी हो। जैसे यूरोपियन यूनियन में अभी मैंने जिक्र किया कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं 28, उनकी एक अलग करेंसी है, दैट इज़ कॉल्ड यूरो। एंड देन हम फिर इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो कह रहे थे कि हमारी भी एक करेंसी होनी चाहिए, और जिससे नेटो की हमने एग्जांपल दी कि जो 1949 में बनाई गई, और वो जो है आपकी 28 स्टेट्स उसमें मेंबर स्टेट्स हैं जिनकी मिलिट्री जो है मिलकर एक मिलिट्री बनाती है। तो इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी चाहते थे कि जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं उनकी एक मिलिट्री हो, लेकिन ओआईसी में कोई मिलिट्री नहीं है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिद्दा में है, सऊदी अरेबिया में, लेकिन बनाया इसको जो है वो रबात में गया था, मोरक्को में। Then this is a very important organization, non-alignment movement, 1961 में बनाई गई थी। इसका जिक्र हमने कल भी किया कि पाकिस्तान इसका मेंबर कब बना था, कौन बताएगा जी? पाकिस्तान नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नेम का मेंबर कब बना था? 1979। जी, किसने बताया? सर मैंने सुरक्षा। सुरक्षा, वेरी गुड, सुरक्षा। तो पाकिस्तान जो है वो 1979 में नेम का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मेंबर बना है। और इसका पर्पस क्या था, कौन बताएगा? सुरक्षा के अलावा कोई बताए, इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या था? जी, बेटा कल हमने पाकिस्तान के एक फेज में इसको जिक्र किया है हमने। नॉन अलाइनमेंट की फॉरेन पॉलिसी के एक फेज में इसका जिक्र किया है। जी, कौन बताएगा? बेटा सही और गलत जवाब नहीं है, जो आपका जवाब है वो सही है, क्योंकि यहाँ पर हम सब सीखने आए हैं, और अगर आप गलत जवाब देंगे तो तब भी आपको पता चलेगा कि सही जवाब क्या था। तो ये भी एक सीखने का तरीका है, ओके, लर्निंग बाय मिस्टेक्स। यस जैन, निशा, सुरक्षा, प्रांजल K2H। जी,
ये जैन जैन K2. जी, निशा आप बात करें। निशा Sir, K2H. ओके, जैन आप बताएं। जैन Sir, can I? Sir, यस सर इसमें था कोल्ड वार को खत्म करना, शायद ही, मेरे ख्याल से यही था। ओके, यू आर क्लोज, यू आर क्लोज। Okay, let me tell you कि what was the alignment, the second phase of the Pakistan foreign policy. पाकिस्तान ने अलाइन किया था and it joined SEATO and CENTO in 1954 and 55. तो इनका पर्पस क्या था? Yes, कशिश तलरेजा। Okay, कशिश। Okay, let's continue. बेटा इनका मकसद क्या था कि पाकिस्तान ने जब इनको ज्वाइन किया तो पाकिस्तान ने अलाइनमेंट की, यानी कि मिलिट्री अलाइनमेंट किया, एग्रीमेंट किया, अलाइन हुआ, साथी बना अमेरिका का या कैपिटलिस्ट ब्लॉक का। तो यहाँ पर नॉन अलाइनमेंट में क्या हो रहा है कि अब पाकिस्तान इनका साथी नहीं बनेगा। ठीक है जी। 1979 में पाकिस्तान ने सेंटो से जान छुड़ा ली। चलिए जी, इसको कंटिन्यू करते हैं। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को 1961 में बनाया गया था, सितंबर 1961 में, और इसको जो है बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस में बनाया गया था। बनाने वाले इंडिया, इजिप्ट और यूगोस्लाविया थे। इंडिया से जवाहरलाल नेहरू थे, और मिस्र से कल हमने मिस्र के प्रेसिडेंट का जिक्र किया था जो कि सुइस कनाल क्राइसिस में बड़े मशहूर हुए थे। उनका नाम कौन बताएगा? किसका सर? इजिप्ट के प्रेसिडेंट का, जो कि मशहूर हुए थे सुइस कनाल क्राइसिस की वजह से, जिन्होंने फ्रांस और बरतानिया को मना कर दिया था और सुइस कनाल क्राइसिस को 1956 में नेशनलाइज कर दिया था। ओके, आई टेल यू, ही इज जमाल अब्दुल नासिर, जो कि सुइस कनाल क्राइसिस के टाइम पे प्रेसिडेंट थे, और 1961 में जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाई गई तो तब भी ये प्रेसिडेंट थे। देन यूगोस्लाविया के जो प्रेसिडेंट थे वो थे सुकार्नो। अब देखें कि जब आपकी कोल्ड वार चल रही है तो उस टाइम पर एक्चुअली आपके तीन जो है वो ब्लॉक्स बनते हैं। कल हमने दो का जिक्र किया, एक आपका कैपिटलिस्ट ब्लॉक और दूसरा हमने कम्युनिस्ट ब्लॉक का जिक्र किया, एंड देन थर्ड जो ब्लॉक है वो आपका वो है नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज का। ऐसे कंट्रीज जो कि ना कैपिटलिस्ट ब्लॉक में जाएंगे ना कम्युनिस्ट ब्लॉक में जाएंगे, वो एक अपना अलग इंडिपेंडेंट ब्लॉक बनाएंगे जो कि किसी भी मिलिट्री पैक्ट से ताल्लुक नहीं रखेगा, और ये ब्लॉक जो है वो आपका नॉन अलाइनमेंट के मेंबर्स या स्टेट्स कहते हैं। इसके 113 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें 35 ऑब्जर्वर्स हैं। पहले ऑब्जर्व होते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद फिर आपको परमानेंट मेंबर का स्टेटस मिलता है। ओके जी। देन देखें कि इसका प्राइम पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, कि पावर पॉलिटिक्स को क्या करना है, एस्क्यू करना है, छोड़ देना है, पावर पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना है। ये क्या है, रियलिस्ट अप्रोच, जो हम कल बात कर रहे थे कि ऐसी
हमने अप्रोच नहीं रखनी, रियलिस्ट अप्रोच नहीं रखनी, हमने लिबरलिस्ट अप्रोच रखनी है कि हमने किसी पावर ब्लॉक में नहीं जाना। देखिए, क्योंकि उस वक्त दो पावर ब्लॉक्स थे, एक कैपिटलिस्ट और दूसरी कम्युनिज्म। तो कैपिटलिस्ट या कम्युनिस्ट ब्लॉक में, इन दोनों ब्लॉक्स में से किसी भी ब्लॉक में हमने नहीं जाना, क्योंकि ये दोनों पावर ब्लॉक्स थे। देन क्लोज एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर स्टेट्स, चाहे वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक के कंट्री हो या कम्युनिस्ट ब्लॉक के कंट्री हो, हमने उनसे दोस्ती रखनी है। देखिए, इंडिया ने कम्युनिस्ट ब्लॉक के रशिया से भी दोस्ती रखी थी, जिस टाइम पे कोल्ड वार चल रही थी, उसी दौरान वो अमेरिका का भी दोस्त था। देन इश्यूज और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना, जो कि इसके मेंबर स्टेट्स हैं, फिर इन्हीं मेंबर स्टेट्स के दरमियान कॉपरेशन और एक्सचेंज करना ऑन द म्यूचुअल इंटरेस्ट, जो सबको फायदा दे। देन वर्ल्ड पीस, जो कि यूएन और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कोशिश कर रही हैं। देन डिसआर्मामेंट, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका नेम का, कि हमने आर्मामेंट यानी कि डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, और जिसको हम न्यूक कहते हैं, इसकी डेवलपमेंट और बाकी इस तरह के मास वेपन डिस्ट्रक्शन की डेवलपमेंट नहीं करनी, क्योंकि इससे तबाही होती है। देन नॉन डिस्क्रिमिनेशन, किसी से भी कोई इम्तियाज, प्रेजुडिस या डिस्क्रिमिनेशन हमने नहीं करनी। स्टेट्स का जो स्टेटस होगा वो इक्वल होगा, एंड ऑल स्टेट्स विल एंजॉय इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम। ओके, नेम जो है वो क्यों अनसक्सेसफुल रही है? बिकॉज ऑफ पोवर्टी, क्योंकि जो मेंबर स्टेट्स हैं इसका नेम के वो पुअर कंट्रीज हैं। देन इन्हीं कंट्रीज में मल न्यूट्रिशन पाई जाती है, इलिटरेसी ज़्यादा है, यानी कि कंट्रीज़ का जो लिटरेसी रेट है वो कम है। फिर इन्हीं कंट्रीज़ में इंडिया, पाकिस्तान आप देख लें, और जितने भी हमारे नेम के मेंबर हैं वो वहाँ पर आपको टेररिज्म दिखाई देती है। और इसके बहुत सारे मेंबर स्टेट्स ऐसे भी हैं जो जिनमें अभी भी डेमोक्रेसी नहीं है। और फिर जो है ये कि न्यूक्लियर, जो हम कहें कि मेंबर स्टेट्स जो है वो न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर इंडिया और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है, जो कि इसके मेंबर स्टेट्स हैं। देन इसका हेडक्वार्टर जो है वो इंडोनेशिया, जकार्ता में है। ओके, सम अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इनका क्विक व्यू कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक और टॉपिक भी कवर करना है। जी बेटा, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये 22 अगस्त 1966 को बनाई गई थी। एक्चुअली ये रीजनल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो है। हमारे यहाँ जो सीपेक की जितनी भी इन्वेस्टमेंट आ रही है ना, सीपेक में जितनी भी इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये सारी इसी से आ रही है। देखिए, एशिया का जितना भी रीजन है और इसके जितने भी कंट्रीज हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए चाइना जो है वो इन्वेस्ट करता है। ओके, इसका हेडक्वार्टर जो है वो फिलिपाइन मनीला में है, और ये कौन सा रीजन जो है वो सर्व करती है? एशिया पैसिफिक रीजन को। देन इसके 67 मेंबर स्टेट्स हैं। ओके, कॉमनवेल्थ नेशन की एक्चुअली ये 31 दिसंबर 1931 में इसको बनाया गया था। इसका एम क्या है कि म्यूचुअल कॉपरेशन होनी चाहिए, असिस्टेंस होनी चाहिए, और जितने भी बरतानिया से आज़ाद मुल्क हैं वो इसके मेंबर हैं, जो कि 54 मेंबर स्टेट्स हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो यूनाइटेड नेशन लंदन में है, बरतानिया में। पाकिस्तान और इंडिया भी इसके मेंबर हैं। देन कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, फिर जो आज़ाद रियासतें हैं उनकी एक अपनी एजेंसीज हैं जो कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स कहलाती हैं, जिसमें आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, किर्गिस्तान वगैरह ये हैं। इसका मिन्स्क जो है वो कैपिटल है बेलारूस का, ये इसका हेडक्वार्टर है। इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इको, एक्चुअली ये मैंने कल बताया था आपको कि आपकी जो इको है ये कब बनाई गई थी? सॉरी, हेलो बेटा, इको को कब बनाया गया था? कल मैंने बताया था कि आरसीडी जो है बनी थी, जो कि 1964 में बनी थी, और इसको बनाने वाले कौन से कंट्रीज थे? इसमें 3 कंट्रीज थे जिन्होंने इसको बनाया था।
अभी इसके 10 मेंबर हैं। सर 1985 में 64 में 1964 में इसको बनाया गया था। सर मैं इको को इको को जी, एक्चुअली आरसीडी का मैं पूछ रहा हूँ, रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट का। ये जो आरसीडी है ये इको का पुराना नाम है, पहले आरसीडी बनाई गई थी, फिर 1979 में इसका नाम चेंज किया गया था, इको का, सॉरी आरसीडी का नाम चेंज किया गया था। बेटा आरसीडी को तुर्की, ईरान और पाकिस्तान ने बनाया था। एफ्टा, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जहां पर भी फ्री ट्रेड का वर्ड होता है ये समझ लें कि यहां पर फ्री ट्रेड से मुराद ये कंट्रीज अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर टैक्सेस नहीं लगाते, जिनको हम टैरिफ कहते हैं, वो टैरिफ नहीं लगाई जाती। ये जो है वो आपकी बनाई गई थी 1960 में, और पर्पस क्या है कि फ्री ट्रेड को प्रमोट करा। अब ये फ्री ट्रेड एक्चुअली है क्या कि कंट्रीज जो है, सपोज ए कंट्री जो है वो बी कंट्री से कोई भी टैक्स नहीं लेगा। अगर एक कंट्री अपने कोई भी गुड्स सेल करने के लिए बी कंट्री के पास भेजता है तो बी कंट्री जो है उसके गुड्स पर, इंपोर्टेड गुड्स पर कोई टैक्स नहीं लगाएगा। तो इससे क्या होगा कि एक कंट्री की जो गुड्स हैं वो ज्यादा बिकेंगी बी कंट्री में, और इनकी प्राइस जो है वो कम होगी। जब टैक्सेस लगेंगी तो एक कंट्री के गुड्स की प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगी, तो बी कंट्री के जो गुड्स हैं वो बिकेंगे, क्योंकि टैक्सेस हाई है तो इंपोर्टेड गुड्स कोई खरीदेगा नहीं। बेटा इसके 4 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें आइसलैंड है, आपके नॉर्वे, स्विट्जरलैंड है और लेस्टेनस्टेन है। देन स्विट्जरलैंड जो है उसका हेडक्वार्टर है। ओके, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएन की एक एजेंसी है, जो कि हम कल मैंने आपको दिखाई थी कुछ एजेंसीज हैं जो आज हम उनको इंक्लूड कर रहे हैं। 1956 को इसको बनाया गया था, और इसने फंक्शनिंग जो स्टार्ट की थी वो 1957 में की थी। ओके जी, टू प्रोमोट पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में जो है वो एनर्जी का यूज करना। बेटा ये इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, आई थिंक के ये, लेट मी सी के आई डोंट हैव मैनुअल हेयर, क्योंकि मैं सखर आईबीसी क्लास ले रहा हूँ तो मैनुअल नहीं है, इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए काइंडली। ओके जी, देन वर्ल्ड बैंक जो है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट या लोन जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज को मिलते हैं वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू मिलते हैं, ठीक है जी। अभी आईएमएफ भी है, वो भी आपको वर्ल्ड बैंक वो भी लोन दे रही होती है। ओके, देन इंटरनेशनल इंटरनेशनल जो है आपकी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इंटरपोल भी कहते हैं, 1923 में बनाई गई थी। इसका प्राइम पर्पस क्या है कि इंटरनेशनल कॉपरेशन करना अमंग द पुलिस, जितने भी मुल्कों की पुलिस है उनका जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन है, उस कोऑर्डिनेशन जो है वो होती है आपकी इसी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, इंटरपोल जिसे हम कहते हैं। 190 कंट्रीज जो है वो इसके मेंबर्स हैं। पेरिस इसका हेडक्वार्टर है, फ्रांस में। फिर ये यूएन की एक और एजेंसी जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, और इसे 1919 में बनाया गया था, और एज अ पार्ट ऑफ जो है आपकी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में क्या हुआ था कि 32 बिलियन डॉलर जो है का रिप्रेशन लगाया गया था, फाइन लगाया गया था जर्मनी पर, जर्मनी पर लगाया गया था, बिल्कुल जर्मनी पर लगाया गया था, क्योंकि जर्मनी ने वर्ल्ड वार 1 लड़ी थी। ओके जी, इट डील्स विद द लेबर इश्यूज, जितने भी कंट्रीज में लेबर के इश्यूज आते हैं वो ये डील करती है। इवन आपके जो चाइल्ड लेबर है, इस चाइल्ड लेबर के केसेस को भी ये डील करते हैं। अगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाए कि किसी इदारे में कोई बच्चा काम कर रहा है तो बड़ा मसला हो सकता है, क्योंकि चाइल्ड लेबर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली। ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, जो कि पाकिस्तान को फंड दे रही होती है। और अभी आईएमएफ ने कुछ कंडीशंस लगाई हैं और कहा है कि आप फेटअप की जो कंडीशंस हैं
27 yes, कंडीशन। सर टैक्सेस IMF के उससे लगे हैं ना, बिल्कुल, जो हमारे पास आजकल जो एनवायरनमेंट टैक्सेस चल रहा है, लगे हैं। बिल्कुल, तो जो भी रिकमेंडेशंस अभी आ रही हैं, अभी हमारे पास जो आपके वर्ल्ड बैंक का बैठा हुआ है रजा बाकर, तो वो भी इसी IMF से आया है। ओके जी। पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, बेटा जितने भी आपकी पेट्रोलियम कंट्रीज हैं जो कि ओपेक कहलाती हैं, उनका एक कोऑर्डिनेशन है। देखिए, पेट्रोल की प्राइसेस कम होना और बढ़ना, ये सारा डील होता है ओपेक से, जैसे पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जिसे हम कहते हैं। और पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जो है आपके कॉपरेशन जो है, इसको हम कहेंगे। तो ये 1960 में इसको बनाया गया था, जिसमें आपके ईरान, इंडोनेशिया, कतर, सऊदी अरेबिया और लीबिया, कुवैत, इराक वगैरह ये सारे शामिल हैं। और इसका हेडक्वार्टर जो है वीना, ऑस्ट्रिया में है। इसमें एक चीज़ और ये देखें कि यहाँ पर एक मिस्टेक है, वी के बाद आई है, VIENA, वीना, जो कि ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। इसका हमने कल जिक्र किया था कि ये इसे जो है वो बांग्लादेश में बनाया गया था 1985 में, ढाका में इसको बनाया गया था। जियाउर रहमान जो है वो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने इनका आइडिया दिया था। दिसंबर 1985 में बनी थी। और इसका प्राइम पर्पस क्या है कि जितने भी आपके साउथ एशिया, देखिए साउथ एशिया से मुराद क्या है, सपोज ये एक पूरा एशिया कंट्री है, ये साउथ है, एशिया का जो साउथ वाला पार्ट है, तो इस साउथ वाले पार्ट में जो भी कंट्रीज आते हैं, उनके दरमियान जो है इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है वो ये करते हैं। चाइना इसका मेंबर क्यों नहीं है? क्योंकि चाइना ईस्ट एशिया में आता है। और रशिया नहीं है क्योंकि रशिया जो है नॉर्थ एशिया में आता है। ओके, कोई मैसेज कर रहा है मुझे, टेक्स्ट किया है किसी ने? ओके, कशिश, चलेंगे। ओके बेटा, ये क्लास जो है वो ख़त्म हो गई है, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके, लेट्स सी के डेफिनेशन, वार की डेफिनेशन को देखें बेटा। एक कंट्री है, सपोज एक कंट्री है, एक स्टेट है और इसकी एक आर्मी है। अब ऐसे ही दूसरी एक स्टेट है, एक दूसरी स्टेट है और उसकी एक आर्मी है। अब क्या है कि स्टेट के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो झगड़ा है, जो वार है, उसको हम कहते हैं वार। और उस जंग को लड़ने के लिए वो किसको यूज करते हैं? आर्मी को। ठीक है, इसको हम कहते हैं वॉर। ये कुछ वार के काजेज हैं, जैसे कि ह्यूमन एग्रेसिव नेचर, जैसे हिटलर के बारे में फेमस है कि हिटलर वाज वेरी एग्रेसिव एंड ही वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ 32 बिलियंस रेप्रेशन ऑन द जर्मनी। और उन पर फिर आर्मी की लिमिटेशन भी लगाई गई थी कि आपने आर्मी कम रखनी है। देन देयर इज साइकोलॉजी नीड फॉर पावर। अब हिटलर जो है वो स्टेट आफ्टर स्टेट जो है वो ऑक्यूपाई करता जा रहा था। जैसे उसने चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा किया, पोलैंड पर भी कब्जा करना चाहता था। और जहां जहां पर वो जर्मन आबाद थे, उन सारे जर्मन्स की आबादी जिस जिस कंट्रीज में थी, उनको वो ऑक्यूपाई करना चाहता था। एंड देन वर्ल्ड आर्मामेंट के हर कंट्रीज जो है वो हथियार रखता है, तो हथियार रखना भी एक कॉज ऑफ वॉर है। फिर अदर फैक्टर्स को हम देखें तो स्टेट्स के दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, सपोज कश्मीर का मसला है, फिर वाटर इशू है हमारे साथ, इसी तरह फ़लस्तीन में गज़ा का मसला है, इसी तरह आपके टेररिज्म का इशू है, तो ये भी वजह बनते हैं वार के। देन आइडियोलॉजी भी इसमें आ जाती है आपकी, जैसे आपकी कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म हमने कल बात की थी। फिर कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं, जैसे मार्क्सिस्ट और एम्पीरियलिज्म की हम बात करें
तो जितने इंपीरियलिस्ट कंट्रीज थे जैसे बर्तानिया, तो वो क्या कर रहे थे, दे वर ट्राइंग टू कलेक्ट मोर एंड मोर बुलियंस। बुलियंस किनको कहा जाता है, आपके गोल्ड एंड सिल्वर को कहा जाता है। आपका बर्तानिया जिसने इंडिया पर कब्जा किया, उसे कॉलोनी बनाई, एंड फिर बर्तानिया जो है वो इंडिया का इंपीरियलिस्ट स्टेट था। तो ये क्या क्यों हुआ, क्योंकि इंडिया के पास बुलियंस थे। आपको पता है कि यहाँ तक कि इंडिया में जो देवी और देवताओं की मूर्तियां बनी हुई थी वो भी सोन की होती थी। तो ये क्या है कि यहाँ पर सोन ज्यादा था, तो बर्तानिया ने उन कंट्रीज को जो है वो कंट्रोल करना शुरू किया जहां पर बुलियन ज्यादा हो। और जिस कंट्री के पास बुलियन ज्यादा होंगी, वो कंट्री जो है वो ज्यादा पावरफुल होगा। फिर एक और चीज इसमें कि मार्क्सिस्ट अप्रोच, कुछ कंट्रीज आपके गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, तो उनकी वजह से भी एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा होता है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो भी काज होती हैं कॉन्फ्लिक्ट का। देन नेशनलिज्म की हम बात करें तो एक पॉजिटिव नेशनलिज्म होती है और दूसरी नेगेटिव नेशनलिज्म होती है। पॉजिटिव नेशनलिज्म जो है वो स्टेट को यूनाइट करके रखती है, और नेगेटिव नेशनलिज्म जो है वो स्टेट को तोड़ देती है। जैसे हम पाकिस्तान की एग्जांपल आपको दूं कि बांग्लादेश में नेगेटिव नेशनलिज्म थी टुवर्ड्स वेस्ट पाकिस्तान, तो वो फिर हमसे अलग हो गए। देन अगर पॉजिटिव नेशनलिज्म होती तो वो हमसे यूनाइट रहते। देन कौसी एनार्की का इंटरनेशनल सिस्टम, एक सिस्टम जो जैसे मैंने कल आपको बताया कि एनार्की एग्जिस्ट करती है, इंटरनेशनली एनार्की एग्जिस्ट करती है। कोई भी जितने भी स्टेट्स हैं उनके ऊपर कोई सुपर स्टेट नहीं है जो कि उनको सब कंट्रीज को कंट्रोल करे। तो हमने क्या किया कि हमने यूएन, लीग ऑफ नेशन और इस तरह ओआईसी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जिनका जिक्र मैं करके आया हूं, इस तरह की हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लिबरलिस्ट अप्रोच पर बेस करती हैं, जितना हो सके स्टेट के दरमियान में इंटरडिपेंडेंसी बढ़ाना, वॉर की पॉसिबिलिटीज को कम करना। तो अब हमारे पास जो सिस्टम है, एनार्की तो एग्जिस्ट करती है अब भी क्योंकि स्टेट सोवरेन है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन अभी कॉसी यानी कि सेमी एनार्किकल सिस्टम है। आधी एनार्की है, आधी नहीं है। ओके, अब देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर एक्चुअली क्या होता है। मैंने जैसे बताया आपको कि एक स्टेट होती है और उसके मुकाबले में एक दूसरी स्टेट होती है, लेकिन इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो आर्मी में भी होती है। अब मैंने कहा कि वार क्या होती है, स्टेट के दरमियान वार होती है, एक मुल्क दूसरे मुल्क के दरमियान में जंग होती है और वो यूज करते हैं आर्मी को। लेकिन यहां पर आर्मी जंग करती है, लेकिन ये आर्मी किसी न किसी स्टेट की होती है, तो इसको हम कहते हैं वर्ल्ड वार सॉरी। ओके, ओके जी, वर्ल्ड वॉर वन जो है इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी कहा जाता है, इसे द ग्रेट वॉर भी कहा जाता है, या इसे जो है द वॉर डेट एंड ऑल वॉर्स। वुड्रो विल्सन ने कहा था कि ये जंग यानी कि वर्ल्ड वॉर वन लड़ लें और उसके बाद फिर आप कभी भी कोई वर्ल्ड वॉर नहीं लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमने दूसरी वर्ल्ड वॉर भी लड़ी, वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू। वेरी गुड जैन। ओके बेटा, लेट्स सी के बेटा सेंट्रल पावर्स कौन से, वो जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, बेल्जियम, बल्गेरिया। बिल्कुल। चलें जी, देन हम अलाइड पावर्स की बात करें तो इसमें रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और रोमानिया इसके मेंबर्स थे, और इन दोनों के दरमियान जो है वो वर्ल्ड वॉर वन लड़ी गई, इन दो ग्रुप्स के दरमियान। एक ग्रुप कहलाता है सेंट्रल पावर और दूसरा कहलाता है अलाइड पावर्स। अलाइड पावर्स एक्चुअली ये जो है वो एक एग्रीमेंट के तहत आए थे। बेटा ये मैंने जो है वो ब्रैकेट में उनके कैपिटल्स लिख दिए हैं, तो ये कैपिटल्स इनके याद करिएगा, कम से कम इनके जो स्लाइड में कैपिटल यूज किए जा रहे हैं उनके आपने कैपिटल्स लाजमी याद करने हैं। चलें जी, फ्रांस फर्डिनेंड। फ्रांस फर्डिनेंड, वेरी गुड। क्या नाम है आपका जैन? यू आर पार्टिसिपेटिंग वेरी मच, आई अप्रिशिएट योर पार्टिसिपेशन। लेट्स सी के ये जो है फ्रांस जोसेफ फर्डिनेंड, इसकी ये वाइफ है सोफिया, एंड देन ये गए थे जो है वो आपका विजिट, ऑफिशियल विजिट पर, जहाँ पर उनको कत्ल कर दिया गया। पहले
इसे गोली मारी गई गर्दन में और फिर उसकी वाइफ को पेट में गोली मारी गई। फिर ये जब मर जाते हैं तो ये जो हैब्सबर्ग की फैमिली है, यानी कि ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के शहजादे की खानदान वाले, वो इल्ज़ाम लगाते हैं सर्बिया पर, क्योंकि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम ब्लैक हैंड था, इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो कत्ल किया था इस हैब्सबर्ग खानदान के शहजादे को, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के शहजादे थे। स्लाइड चेंजेस में थोड़े इश्यूज आ रहे हैं। ओके देन बेटा, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ने इसका इल्जाम लगाया सर्बिया पर और सर्बिया से कहा कि जो कंडीशन हमने आपको देनी है उस पर आपने अमल करना है, यानी कि आपने ब्लैक हैंड को डिसमिस कर देना है और जो टेररिस्ट आपके पास हैं उनको ख़त्म कर देना है। जैसे वो अक्सर अफगानिस्तान को कहा जाता है कि आप टेररिस्ट को कंट्रोल करें, पाकिस्तान भी उनको कहता है। चले जी, और बाकी जो आपकी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस तरह की, उनको आपने कंट्रोल करना है। और जो भी इंक्वायरी होगी, जो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर इंक्वायरी करेगी इस मर्डर की, वो इंक्वायरी आप एक्सेप्ट करेंगे। और जब भी कोई जुरिस्डिक्शन या फैसला होगा तो उसमें ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के भी ऑफिसर्स यानी कि ऑफिशियल्स बैठेंगे। चले जी, देन ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ने क्या किया था, दो अल्टीमेटम इश्यूज किए थे। एक आपके जो जर्मनी जो है उसने जर्मनी ने जो है वो ऑस्ट्रिया की सपोर्ट के साथ, ऑस्ट्रिया हंगरी की सपोर्ट के साथ जर्मनी ने दो अल्टीमेटम इश्यूज किए थे। एक 24 अल्टीमेटम कि उन्होंने रशिया से कहा था कि आप अपनी फौजें लेकर नहीं आएंगे अगर हम सर्बिया पर अटैक करते हैं, और दूसरा अल्टीमेटम उन्होंने फ्रांस को दिया था कि आपने न्यूट्रल रहना है बिटवीन जर्मनी एंड रशिया। अगर रशिया, क्योंकि रशिया सपोर्ट कर रहा था सर्बिया को, अगर रशिया सर्बिया पर अटैक करता है तो फ्रांस जो है वो न्यूट्रल रहेगा, फ्रांस रशिया और सर्बिया को सपोर्ट नहीं करेगा। तो उन्होंने टोल और अल्टीमेटम दिया था फ्रांस को। लेकिन फिर क्या हुआ था कि जैसे ही सर्बिया पर अटैक हुआ तो रशिया ने उसको सपोर्ट किया और इस तरह जो है आपकी जंग शुरू हो गई थी। चले जी, इसमें आपको अलाइड पावर, सेंट्रल पावर्स और न्यूट्रल कंट्रीज के लिस्ट जो है वो मैप में शो की गई है। ये न्यूट्रल स्टेट्स हैं और ये आपके जो है वो अलाइड पावर्स हैं, जो कि रशिया, फ्रांस, आपके इटली और आपके पुर्तगाल और ब्रिटेन और वगैरह ये शामिल हैं। और इसमें सेंट्रल पावर्स में आपकी ओटोमन एम्पायर, पुर्तगाल गाजी की सल्तनत वाले हैं, और इसी वजह से वर्ल्ड वार 1 की वजह से पुर्तगाल टर्की गाजी वालों की या गाजी वालों की सल्तनत जो है वो खत्म हो गई थी। सर वो कमाल अतातुर्क की वजह से। कमाल अतातुर्क, बिल्कुल, इसका हम जिक्र करेंगे बेटा अभी आगे, इसका जिक्र आगे आ रहा है। हम क्योंकि इस सारी चीज़ों को शॉर्टली हम कवर करते जा रहे हैं, ओके हम इसको ग्लोबल लेवल का एनालिसिस करें कि ये चीज़ें किस वजह से हो रही थी, तो एनार्की कर ग्लोबल सिस्टम की वजह से हो रही थी। एक मुल्क ऐसा हो जो तमाम मुल्कों को कंट्रोल करे, ऐसा मुल्क है ही नहीं। हाँ, अमेरिका सुपर पावर है, उसकी डोमिनेंसी है, लेकिन वो पाकिस्तान की पॉलिसी को, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को, पाकिस्तान की पॉपुलेशन को और पाकिस्तान की सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस को कंट्रोल नहीं करता। चलें जी, फिर बरतानिया की डोमिनेंसी थी। आप देखें कि उस वक्त में वर्ल्ड वार 1 के दौरान बरतानिया सुपर पावर था, अमेरिका सुपर पावर नहीं था। हाँ, अमेरिका एक पावरफुल स्टेट था लेकिन सुपर पावर नहीं था। तो ब्रिटेन जो है वो सुपर पावर था, साथ में फ्रांस सुपर पावर था और इनकी नेवल पावर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। तो बरतानिया क्या करता था, जहां पर उसके देखता था वो वहां पर किसी न किसी कंट्री पर कंट्रोल कर लेता था, जैसे इंडिया के साथ उन्होंने किया था। फिर जर्मनी जो है वो भी स्ट्रगल कर रहा था फ्रांस बरतानिया के कंपटीशन में, ताकि वो भी एक पोजीशन और स्टेटस हासिल करे। देन एक मिसकैलकुलेशन हो गई कि आपका जो जर्मनी है उन्होंने समझा कि अगर हम सर्बिया पर अटैक करते हैं तो रशिया उनको सपोर्ट करने नहीं आएगा, क्योंकि हमने उनको 12 आवर अल्टीमेटम दे चुके हैं। और
ग्लोबली अलायंसेस हो रहे थे, मिलिट्री अलायंसेस हो रहे थे, मिलिट्री पेक्ट्स हो रहे थे स्टेट्स के दरमियान। एक है आपका ट्रिपल अलायंस, जो कि आपका जो है 1882 में हुआ। इसमें आपकी मेंबर था इटली और आपका ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर और आपका रशिया। फिर इटली जो है वो बाद में तुर्की वालों को छोड़ के चला जाता है। फिर ट्रिपल एंटांट, एंटांट इज अ फ्रेंच वर्ड व्हिच मींस एग्रीमेंट, एकॉर्ड। ओके जी, ये जो है वो आपका 1907 में हुआ था, जिसमें आपके बर्तानिया, फ्रांस और यूएस जो है वो आपके शामिल थे। फिर ये ट्रिपल एंटांट था। ये क्या है, एक्चुअली मिलिट्री एग्रीमेंट्स थे स्टेट्स के दरमियान। जब आप मिलिट्री एग्रीमेंट्स करते हैं तो एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि अगर एक स्टेट पर अटैक करें तो दूसरी पर भी अटैक हो सकता है। तो बाद में फिर क्या है कि अगर जैसे सर्बिया पर अटैक हुआ तो रशिया उसको सपोर्ट करने चला आया, क्योंकि रशिया जो है वो सर्बिया की जो न्यूट्रलिटी है उसको सपोर्ट कर रहा था। देन नेशनलिज्म भी थी, जर्मन्स जो है वो अपनी कौम परस्ती में मगन थे, और फिर एक प्रिजुडाइज, एक कौम दूसरे कौम से नफरत भी करती थी। देन फिर हर कंट्री में एक डोमेस्टिक अनरेस्ट भी पाया जाता था। फिर हम इसको इंडिविजुअल एनालिसिस पे करें तो एक रेशनल चॉइस थ्योरी है, जो कि ये कहती है कि हमने अल्टरनेटिव बनाने हैं, और अल्टरनेटिव में हमने एक अल्टरनेटिव या दो अल्टरनेटिव या ऐसे अल्टरनेटिव चूज करने हैं जो कि हमें फायदा दे। तो इस जंग में भी ऐसा हुआ था, उन्होंने अल्टरनेटिव्स बनाए थे और फिर जो बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव्स थे वही वो चूज कर रहे होते थे। चलें जी, देन प्रॉस्पेक्ट थ्योरी क्या कहती है कि हमेशा स्टेट जो है वो रिस्क को एवर्स करती हैं, रिस्क एवर्स होती हैं। जहां पर जितना रिस्क होता है, वो देखें आप कि पूरी दुनिया जो है वो वर्ल्ड वार नहीं लड़ रही थी, सारे मुल्क जंग नहीं लड़ रहे थे। कुछ स्टेट जो मैंने आपको मैप में शो किया वो न्यूट्रल भी थे, क्योंकि वो रिस्क एवर्स या प्रॉस्पेक्ट थ्योरी में बिलीव करते थे। देन मिलिटरिज्म, हर मुल्क अपनी आर्मी बनाता जा रहा था। फिर इंपीरियलिज्म, बरतानिया जो है वो अपनी इंपीरियलिज्म के चक्कर में जहां जहां पर उसे मौका मिलता था वो कंट्रोल कर लेता था। जैसे उसने फ़लस्तीन पर भी कब्जा किया, उसने बर्मा पर भी कब्जा किया, इंडिया पर कब्जा किया, और कुछ अरब स्टेट्स पर भी कब्जा किया था, जैसे आपकी जो है वो इंडोनेशिया वगैरह। चलें जी, देन बाल्कान क्राइसिस भी हुए थे। बाल्कान एक्चुअली जो है आपकी स्टेट्स थी जो कि तुर्की के अंडर में आती थी, लेकिन ये 1911 और 1912 में दो जंगें हुई जिसमें तुर्की से ये चीज़ें चली गई, और तुर्की ने फिर ये जाकर बरतानिया के अगेंस्ट में, क्योंकि बाल्कान जंग्स लड़ी गई तो उस वजह से जो है तुर्की ने भी इसको सपोर्ट किया। मिसकैलकुलेशन यही कि जो है रशिया जो है वो जंग में नहीं कूद पड़ेगा, लेकिन रशिया जो है वो जंग में कूद पड़ता है। फिर 1914 में जर्मनी ने एक प्लान बनाया, दैट इज कॉल्ड स्केलेफन प्लान, और इसका पर्पस क्या था कि उन्होंने आर्मी को 3 ग्रुप्स में A, B, C ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था फ्रांस पर अटैक करने के लिए। और इन्होंने ये किया था कि हम मुख्तसर वक्त में बेल्जियम पर कब्जा कर लेंगे, हम बेल्जियम को फतह कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अपनी फौज को भेजने के लिए इन्होंने ट्रेन भी चलाई थी बेल्जियम की तरफ। चलें जी, फिर जर्मन की जो कैलकुलेशन थी कि रशिया जो है वो रेस्पॉन्स नहीं देगा, ये स्केलिफन प्लान में उन्होंने तैयार किया था। जैसे आपके रेशनल जो है वो चॉइस थ्योरी में मैंने आपको बताया कि इन्होंने ये अल्टरनेटिव्स बनाए थे, लेकिन ये इनका प्लान जो है वो फेल हो जाता है। लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। इट चेंज द फेस ऑफ यूरोप, इसने पूरी यूरोप का नक्शा बदल दिया। वो कॉलोनी जो बरतानिया के कब्जे में थी और वो कॉलोनी जो तुर्की के कब्जे में थी, और इसी तरह जर्मनी टूट गया, दो हिस्सों में सारी टूट अलग हो गया। गई थी, जी, सारी अलग हो गई थी सर। बिल्कुल सेपरेट हो गई थी। ये मैंने नीचे लिखा है इंडिपेंडेंट स्टेट्स के नाम पे। आर्मिस्टिस साइन किया गया था 11 नवंबर 1918 को। इसका पर्पस क्या था कि जंग जो है वो अब खत्म हो चुकी है, वर्ल्ड वार 1 जो है वो खत्म हो चुकी है, और 1914 से 1918 तक आपकी वर्ल्ड वार जो है वो चली है, फर्स्ट वर्ल्ड वार। देन 3 सल्तनतें तबाह हो गई इस वर्ल्ड वार के चक्कर में। 3 सल्तनतें तबाह हो गई। कौन सी? तुर्की की सल्तनत उस्मानिया, सल्तनत उस्मानिया, वेरी गुड। और
वो दूसरी याद नहीं और हैब्सबर्ग खानदान की सल्तनत कौन सी थी? और सर ये ऑस्ट्रियो हंगरी भी थी ना ऑस्ट्रिया शायद। हंगरी की सल्तनत तबाह हो गई। और उसके बाद रशिया में रश रशिया में जार की सल्तनत, ये जो मैंने लिखा है ये देखें, मैं मार्क कर रहा हूं, ये इसको मैं बताता हूं ये क्या था। रशिया की सल्तनत तबाह हो गई। तो इस जंग के नतीजे में 3 सल्तनतें तबाह हो गई और इन 3 सल्तनतों से फिर पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, फिनलैंड, एस्टोनिया, लिटाविया, लिथुआनिया। बेटा ये जो 3 स्टेट्स हैं, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, ये तीनों स्टेट जो है ये बाल्टिक स्टेट्स कहलाती है। ये क्या कहलाती है? बाल्टिक स्टेट्स। ये बाल्टिक स्टेट्स कहलाती हैं। एक्चुअली ओके जी, ये बाल्टिक स्टेट्स कहलाती हैं। इनके जो कैपिटल्स मैं आपको बता दूं, एस्टोनिया का जो कैपिटल है वो टैलिन है, और लैटविया का कैपिटल रिगा है, और लिथुआनिया का कैपिटल जो है विल्नियस है। तो ये 3 जो है अलग रियासतें बनी, ये बाल्टिक स्टेट्स के नाम से इनको याद किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बाल्टिक स्टेट्स कौन सी हैं और कितनी हैं, तो ये 3 है, और ये तीनों जो है ये हैं एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया। देन फिर 1920 में आयरलैंड जो है वो आज़ाद हो जाता है बरतानिया से। आपने अगर एनी बसंत का नाम सुना हो, होम रूल लीग मूवमेंट का नाम सुना हो, तो एनी बसंत जो है वो आयरलैंड से आई थी, और वहां पर क्योंकि होम रूल मूवमेंट एक चल रही थी, तो वही मूवमेंट वो उन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाई थी 1916 में, और 1914 की डेट भी आती है इसकी। ठीक है जी, चले अब हम बात करते हैं कि ये जो जार है तो जो सर इन दोनों में से करेक्ट कौन सी है? अगर कोई ऑप्शन आता है एमसीक्यूज में तो हम कौन सी लगे? बेटा 1916 कर दें, क्योंकि ये ज्यादातर यही आती है। सही है सर। चलें जी, देन हम जार की बात करें कि जो रशिया के बादशाह थे या किंग या एम्परर थे, वो जार थे, और उनकी सल्तनत जो है वो बोल्शेविक्स ने ख़त्म कर दी। एक्चुअली बोल्शेविक्स क्या थे, जैसे मैंने कल कंटिन्यू किया था, तो पहले मैंने आपको कार्ल मार्क्स के बारे में बताया था। कार्ल मार्क्स ने प्रिडिक्शन की थी कि नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन आएगा वो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आएगा, और यही कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन शुरू हुआ था रशिया से, जिसमें जो बोल्शेविक लोग थे, 2 तरह के लोग थे, एक मेनशेविक थे और दूसरे बोल्शेविक थे। ये जो बोल्शेविक लोग थे ये कम्युनिस्ट थे और कार्ल मार्क्स से मुतासिर थे, और इन्होंने ही जार की सल्तनत को ख़त्म कर दिया था। चलें जी, देन फिर आपकी जो ये वार है, सेटअप डिटरमाइन एफर्ट बिल्ड अ ग्लोबल सिस्टम। अच्छा, इसी वर्ल्ड वार 1 के बाद जो है एक काम उन्होंने किया, ये कि 1920 में एक नया ग्लोबल सिस्टम दिया, या जिसे हम लीग ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। यूनाइटेड नेशन से पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम था कि वर्ल्ड वार 2 को रोकना, वो थी आपकी लीग ऑफ नेशन, जो कि 1920 में बनाई गई। ओके जी, लेट्स सी कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं, नताइज क्या निकलते हैं। चलें जी, देखिए जब ये वर्ल्ड वार 1 लड़ी गई, तो उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन की गई थी 28 जुलाई। बेटा ये डेट याद रखें, 28 जुलाई को ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन की थी। ये साइन की गई थी फ्रांस में, ये साइन की गई थी, और ये साइन की गई थी जर्मनी के साथ, क्योंकि जर्मनी और फ्रांस ये दोनों एक सेंट्रल और एक अलाइड पावर के मेंबर्स थे। तो ये फ्रांस में साइन की गई थी जर्मनी के अगेंस्ट में। इसी पर उन्होंने पाबंदी लगाई थी, जर्मनी अपनी फौज ज़्यादा नहीं रखेगा, और 32 बिलियन डॉलर जो है, कोई 32 अरब के जो है वो जुर्माना जो है लगाया गया था। फिर उन्होंने जर्मनी को टुकड़े टुकड़े कर दिया, और फिर जर्मनी के कैपिटल बर्लिन को उन्होंने ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन में बना दिया। फिर उसके दरमियान में एक बर्लिन वॉल जो है वो बना दी गई, ताकि ईस्ट और वेस्ट बर्लिन को जो है वो अलग कर दिया गया है। ईस्ट बर्लिन जो है वो आपके रशिया के कब्जे में था,
और वेस्ट बर्लिन जो है वो फ्रांस और बर्तानिया के कब्जे में रहा। देन ट्रीटी ऑफ सर्व्स साइन की गई थी और देन ट्रीटी ऑफ लॉजेन साइन की गई थी। मैं शॉर्टली इनको आगे आपको दिखाता हूँ। चलें सर जी। ये ट्रीटी ऑफ लॉजेन अभी 2023 में खत्म होगी ना? इसको हम कंटिन्यू करते हैं आगे। चलें जी। तो लीग ऑफ नेशन जो है वो 1920 में बनाई गई थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। बेटा ये इसके इंपॉर्टेंट क्लॉजेज हैं, देखें। क्लॉज नंबर 231 जो है वो डील करता है आपके वॉर गिल्ड क्लास से। इसका मकसद क्या है कि वर्ल्ड वार 1 का जिम्मेदार कौन है, इल्जाम किस पे आएगा, किसकी वजह से? जर्मनी। जर्मनी। जर्मनी है, और इसी वजह से जो है वो उन्होंने ये चीज की थी। चलिए जी। डीमिलिटराइज यानी कि जर्मनी जो है वो अपनी मिलिट्री को कम करेगा। ओके जी। ये जो ट्रीटी ऑफ लॉजेन है, इससे पहले सब ओके जी। अलाइज जो है वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तुर्की की कंट्रोल करेंगे। अरब एशिया और नॉर्थ अफ्रीका जो है वो तुर्की से सेपरेट हो जाएंगे। अरब एशिया और नॉर्थ अफ्रीका यानी कि मिस्र वगैरह वाले, ये तुर्की से सेपरेट हो जाएंगे। सऊदी आर्मेनिया, अरब वगैरह। बिल्कुल। और देन फिर ग्रीस जो है वो एनाटोलिया को और वेस्ट एशियन आइलैंड्स को जो है वो कंट्रोल करेगा। फिर इसी टीटी को, जैसे आप कह रहे थे, इस टीटी ऑफ सर्व्स को जो है वो रेक्टिफाई किया था या मॉडिफाई किया गया था। एंड देन टीटी ऑफ लॉजेन जो है वो 1923 में साइन की गई थी। क्या हो रहा है? ओके जी। ये जो है वो फ्रांस जबान में लिखी गई थी, जिसमें ये था कि तुर्की में आज़ान और बुरके पर अजान और पाबंदी। बुर्का बैन। बिल्कुल। और सेक्युलर स्टेट जो है वो तुर्की को डिक्लेयर कर दिया गया था। अभी वो वहाँ पर आप तुर्की को सेक्युलर कंट्री देखेंगे। देन तुर्की के जो भी एसेट्स है वो कॉन्फिस्केट कर दिए गए, जब्त कर लिए गए। और ये जो है ग्रांड नेशनल असेंबली बनाई थी आपकी कमाल अतातुर्क की, जो आप नाम ले रहे थे जैन। कमाल अतातुर्क ने यस सर। ग्रांड नेशनल असेंबली बनाई थी, और ये नेशनल असेंबली बनाकर उसने तुर्की को मॉडर्नाइज भी किया और साथ में जो है वो सेक्युलर भी बना दिया। और तुर्की को मना कर दिया गया कि आपने अपनी रिसोर्सेज जमीन से नहीं निकाल दी। और एक आपका पोर्ट जो है उससे, जो कि बोस्पोरस। बोस्पोरस के नाम से था, वहां से तुर्की टैक्स जो है वो कलेक्ट नहीं करेगा। ये जो ट्रीटी ऑफ लॉजेन है, ये ट्रीटी ऑफ लॉजेन जो है 2023 में जो है वो खत्म हो जाएगी। और जो आजकल आपको यूट्यूब के चैनल पे मिलता है कि 2023 के बाद अर्तुगरुल गाजी का। कि क्या फिर अर्तुगरुल गाजी वापस आएगा? उस्मान सर, सल्तनत उस्मानी। सल्तनत उस्मानिया ये अर्तुगरुल गाजी के बेटे थे, यस सर। छोटे बेटे। ओके जी। देन एक्चुअली के ये जो सेंट्रल पावर्स थे यानी कि जर्मनी वाले, वो फेल क्यों हुए? बिकॉज ऑफ स्किलिफन प्लान। ये जो इन्होंने प्लान बनाया था कि उन्होंने जल्दी से जल्दी बेल्जियम पर कंट्रोल कर लेना है, उन्होंने ट्रेनें भेजनी है, फौज भेजनी है और जल्दी वो कंट्रोल कर लेंगे और रशिया जो है जंग नहीं लड़ेगा, वो फेल हो जाता है। देन ये जो आपके जर्मनी वाले थे, तुर्की वाले थे, और इनका जो नेवल पावर था वो स्ट्रांग नहीं था एज कंपेयर टू द आपके जो बरतानिया वाले थे या यूएस वाले थे। फिर इसमें मेन फैक्टर क्या था कि जब अमेरिका इसमें पार्टिसिपेट करता है तो जो है ये और ज़्यादा जो है वो सिचुएशन ख़राब कर देता है जर्मनी के लिए। और जर्मनी के पास जो सिपाही थे वो तमाम जो है वो यंग थे और इनएक्सपीरियंस थे। सर और तुर्की के पास सर मॉडर्न वेपन्स भी नहीं थे ना तब। डेफिनेटली मॉडर्न वेपन्स भी नहीं थे, बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो जो हम एनालिसिस कर रहे थे तो उसमें जर्मनी का मैंने आपको बताया कि वो भी एक स्टेटस और पोजीशन के लिए स्ट्रगल कर रहा था एज कंपेयर टू यस। बरतानिया और फ्रांस के पावरफुल स्टेट नहीं था। ओके। इट वाज अ डिफेंसिव वॉर। देखिए ऑस्ट्रिया जो है वो ऑफेंसिव था अगेंस्ट सर्बिया, और इसी वजह से बाकी जो वर्ल्ड वार में कंट्रीज इन्वॉल्व हुए वो इसी वजह से हुए थे, क्योंकि
वो ऑफेंसिव था, और बाकी जो स्टेट्स थी जैसे कि रशिया वो डिफेंसिव था और वो सर्बिया को डिफेंस कर रहे थे। एंड इनमें कोई भी ऑफेंसिव वॉर जो है वो नहीं लड़ रहा था। मोस्ट वर कन्विंस्ड दैट दे वर फाइटिंग अ डिफेंसिव वॉर। सबको यही लग रहा था, हर मुल्क को यही लग रहा था कि मैं वर्ल्ड वॉर इस वजह से लड़ रहा हूं कि मुझे खुद को बचाना है, इस वजह से नहीं लड़ रहा हूं कि मैंने दूसरे को तबाह करना है। चले जी, तो एक क्रिसमस ट्रूस के नाम से दिसंबर 1940 में एक सिचुएशन सर, ऐसी वन भी नाइट, बिल्कुल ऐसी भी आती है जहां क्रिसमस पर नाइट। क्रिसमस नाइट जो है वो सेलिब्रेट की गई। वो जो सिपाही लड़ रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, उन्होंने रात में जो है क्रिसमस मनाई और शैंपेन वगैरह पी, डांस की और वगैरह वगैरह। फुटबॉल खेलते हैं सर, डांस वांस हर चीज। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक पोएम है इन फ्लैंडर्स फील्ड के नाम से जो कि फेमस हुई थी, जॉन मैक्रे ने लिखी थी, और ये जो है पूंछ मैगजीन में 1915 में पब्लिश हुई थी, जो कि वर्ल्ड वार वन पर एक नज़म लिखी हुई है। चलें जी, देन चलें इसको छोड़ देते हैं, हमारा टाइम कम है। बेटा ये एक डॉक्यूमेंट्री है, ये थोड़ा सा देख लें कि वर्ल्ड वार वन की जो टाइम कोड सेमेंट्री है, ये एक कब्रिस्तान का नाम है जिसमें कोई 12,000 जो है वो कब्रें हैं, और उसमें 35,000 कब्रें ऐसी हैं जिनको खुदा जानता है कि वो किसकी कब्र है, और अपने कंट्रीज़ के मुल्क के लोगों को भी नहीं पता। और फिर एक मैनिन गेट के नाम से एक और कब्रिस्तान है जो कि बेल्जियम में है, और उसके साइप्रस में, जिसमें कोई 54,896 जो है वो कोई सोल्जर्स हैं वर्ल्ड वार के दफन वहां पर। ये एक वर्ल्ड वार पर डॉक्यूमेंट्री है, इसको लाजमी देखिएगा बाद में जब मैं आपको स्लाइडें भेज दूं। चलें जी, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड वार टू सर। वर्ल्ड वार टू को, वेरी गुड। ओके जी बेटा, वर्ल्ड वार जो है वन को थोड़ा सा हमने रिकेप कर लें। देखेंगे वर्ल्ड वार जो है वो द वार डेट विल एंड ऑल वार्स, ये वुडरो विल्सन ने कहा था। इसको ग्रेट वार भी कहा जाता है। वार की हमने डेफिनेशन देखी कि दो मुल्कों के दरमियान जंग और वो अपनी फ़ौज को यूज़ करते हैं। फिर हमने वर्ल्ड वार की डेफिनेशन को देखा कि वर्ल्ड वार क्या है, कि जो मुल्कों की फ़ौजें होती हैं वो लड़ती हैं। देन हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखा कि ट्रीटीज साइन की गई, सर्व्स, लॉजेन, और ये दो सर्व्स और लॉजेन जो है वो तुर्की से ताल्लुक़ रखती हैं, और वर्साइल्स ट्रीटी जो है वो जर्मनी से ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि ये दोनों पावरफुल स्टेट्स थी सेंट्रल पावर्स में। तो ये है, और लीग ऑफ नेशन बनाई गई इसके बाद, जिसका काम था वर्ल्ड वार टू को रोकना, जो कि नाकाम हो जाती है वर्ल्ड वार वन टू को रोकने में। वर्ल्ड वार वन जो है ये आपकी शुरू होती है 1 सितंबर 1939 को, जब जर्मनी जो है वो पोलैंड पे अटैक कर देता है। अभी देखेंगे बेटा, अलाइड पावर्स जो है वो अलाइड पावर्स ही रहते हैं, इनका नाम चेंज नहीं होता। यहाँ पर आपके जो सेंट्रल पावर चेंज हो गया। बिल्कुल, अब जो सेंट्रल पावर्स है उनका नाम चेंज हो जाता है, और ये हो जाता है आपका एक्सिस पावर। देखें हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 1919 से लेकर 1924 तक, जब तक कि तुर्की जो है वो अलग नहीं हो जाता, यानी कि उस्मानिया सल्तनत बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक हमारे यहाँ खिलाफत मूवमेंट चलती रही। क्योंकि तुर्की को जॉर्डन, लेबनान और फ़लस्तीन वगैरह को टुकड़े टुकड़े कर दिया, और इससे आपके अरब और नॉर्थ अफ्रीका की रियासतें अलग हो गई, तो तुर्की बिल्कुल ख़त्म हो गया। तुर्की एक मुल्क रह गया। 1924 में इसके जो खलीफे थे अब्दुल मजीद, उनको निकाल दिया गया। तो ये हुआ कि तुर्की जो है वो सिरे से ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर हमें तुर्की जो है एक्सिस पावर में नज़र नहीं आता। यहाँ पर जर्मनी है, इटली है, जापान है और रशिया है, जो कि इसके मेंबर स्टेट्स थे। देन यहाँ पर यूके, यूएसए, फ्रांस, पोलैंड, और फिर 1941 में जो है रशिया जो है वो इन्वॉल्व होता है। रशिया भी तब इन्वॉल्व होता है क्योंकि रशिया ने लेबेनस्ट्रॉम के नाम से एक इलाका था जो कि रशिया का था, वहां पर हिटलर ने जब फौजें भेजी और
जोसेफ स्टालिन जो कि आपका प्रेसिडेंट था रशिया का, वो एक हफ्ते के लिए बेहोश पड़ा रहा कि मैं तो इसका साथी था, इसने मुझे कैसे अटैक किया है, जर्मनी वालों ने, हिटलर ने कैसे अटैक किया। बेटा देखें, केसर वेलहेम जो है टू, जो कि फर्स्ट जो है आपकी वर्ल्ड वार के बाद उसको एब्डिकेट कर दिया जाता है। एब्डिकेशन का मतलब ये है कि किसी भी किंग को, एम्परर को तख्त से हटा देना, ठीक है जी। देन फिर एक वेमर रिपब्लिक के नाम से, तुर्क जर्मनी का नाम जो है वो चेंज करके वेमर रिपब्लिक के नाम से एक गवर्नमेंट बना दी जाती है। और फिर बाद में जो है आपका 1933 में आ जाता है हिटलर। चलें जी, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर को हमने देख लिया कि आपकी हंगरी जो है वो ऑस्ट्रिया से अलग हो जाती है और इसका कैपिटल जो है वो आपकी हंगरी का है बुदापेस्ट। ओके जी, चेकोस्लोवेकिया जो है वो भी आज़ाद हो जाता है हंगरी एम्पायर से। सर्बिया भी वो आज़ाद हो जाता है। पोलैंड जो है वो उसको फिर से बना दिया जाता है। फ्रेंच जोसेफ जो कि फ्रेंच फर्डिनेंड के अंकल थे, उनका इंतकाल हो जाता है 1916 में, यानी कि वर्ल्ड वार वन के चलते चलते वर्ल्ड वार वन चल रही है और उसके चाचा का इंतकाल हो रहा है। चलें जी, फिर इसी को रिप्लेस करते हैं चार्ल्स वन, और फिर इसी चार्ल्स वन को जो है वो मेडेरिया आइलैंड की तरफ जो है वो भगा दिया जाता है और चार्ल्स को एग्जाइल कर दिया जाता है। तो ये जो है वो आपकी ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर की कंडीशन रही। फिर तुर्की को हम देखें कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, क्योंकि वो मिलिट्री के जनरल थे, तो उन्होंने 29 अक्टूबर 1923 को तुर्की को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया और फिर 1924 में इन्होंने ग्रांड नेशनल असेंबली बना दी और फिर वहाँ के जो खलीफा अब्दुल मजीद थे उनको निकाल दिया। एक एग्रीमेंट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइक पिकॉट एग्रीमेंट के नाम से, जो बरतानिया और फ्रांस वालों ने साइन किया था अरब लोगों से, सऊदी अरब और अरब कंट्री से, और उनसे कहा था कि आप हमें वर्ल्ड वार वन में तुर्की के खिलाफ, यानी कि उस्मानिया सल्तनत के खिलाफ आप हमें सपोर्ट करें। तो अरब लोग भी तुर्की अपनी मुसलमान कंट्री के अगेंस्ट में लड़ रहे थे, क्योंकि बरतानिया ने उनसे वादा किया था कि हम तुर्की को तोड़ने के बाद आपको मुल्क बना के देंगे, लेकिन फिर ऐसा उन्होंने वादा जो है वो निभाया नहीं। और इसी में एक जो है वो आपको इराक और सीरिया के दरमियान एक बॉर्डर की लाइन उन्होंने इस एग्रीमेंट के तहत खींची थी, जिस पर जाकर आपके दाइश वालों ने, आईएस वालों ने कंट्रोल किया था और फिर वो वहां पर उन्होंने, ये एक वीडियो है उसी साइक पिकॉट एग्रीमेंट से कंसर्न, इसको बाद में देख लीजिएगा। बेटा लेट्स सी के काजेज ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार क्या थे। एक था आपका वर्साइल्स ट्रीटी, जो कि आपके 28 जुलाई 1919 को साइन की गई, जिसमें सारी जिम्मेदारी तुर्की पर डाल दी। अब जब हिटलर की बारी आई, जब हिटलर कंट्रोल करता है तुर्की को, तो वो इस चीज़ का बदला लेना चाहता है, वो इसको अपनी बेइज्जती समझता है और उसने फिर अपनी फौज बनाना, जो कि वर्साइल ट्रीटी में मना था कि आप फौज ज़्यादा नहीं रख सकते, तो इसके उसने अगेंस्ट में फौज बनाना शुरू कर दी। लीग ऑफ नेशन, जो कि बाद में इसे जो है यूनाइटेड नेशन के से इसे रिप्लेस कर लिया, तो लीग ऑफ नेशन बनाई गई। अब ये लीग ऑफ नेशन 1920 में बनी, लेकिन ये फेल हो गई, क्योंकि इसका काम था वर्ल्ड वार वन को रोकना, टू को रोकना, सॉरी। देन लीग ऑफ नेशन का एक प्राइम पर्पस था कलेक्टिव सिक्योरिटी, कि सारे मुल्क जो है वो मिलकर सिक्योरिटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी की एग्रीमेंट्स करें और फिर वार को अवॉइड किया जा सकता है। फिर यूरोप में हिटलर्स आ जाते हैं, डिक्टेटर्स आ जाते हैं, जिसमें एक आपका हिटलर जो कि आपका जर्मनी का है, फिर मोसोलिनी जो कि आपका इसका है इटली का, और फिर जोसेफ टीटू जो कि आपका जापान का डिक्टेटर है। तो ये डिक्टेटर आ जाते हैं आपके यूरोप में, और इन्हीं तीनों डिक्टेटर्स ने जंग लड़ी थी। फिर वर्ल्ड वार वन के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस भी आते हैं, जो कि क्योंकि जर्मनी जो है वो अपनी जो रेप्रेशन उन पर लगाई गई थी वो पे नहीं कर पाते हैं, तो जर्मनी की बड़ी बुरी हालत हो जाती है। देन पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट, ये भी एक वजह है। जब हिटलर ने स्टेट्स पर, जैसे चेकोस्लोवेकिया पर, यूगोस्लेविया पर और जो भी जर्मन स्टेट्स थी उन पर कब्जा करना उसने शुरू किया,
तो उसको बरतानिया और फ्रांस वाले कुछ नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर हम खामोश रहें तो ये खुद ही रुक जाएगा। इस पॉलिसी को कहा जाता है अपीसमेंट पॉलिसी। तो पुश करने के चक्कर में उन्होंने वर्ल्ड वार 2 शुरू करवा दी। मिसकैलकुलेशन, कि अगर मैं पोलैंड पर हमला करता हूं, हिटलर की मिसकैलकुलेशन, हिटलर समझता था कि अगर मैं पोलैंड पर हमला करता हूं या फ्रांस पर हमला करता हूं तो बरतानिया उसका साथ नहीं देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सर जी जी। सर ये हिटलर जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपनी आर्मी के कैप्टन मेजर थे ना? सॉरी। सर हिटलर पहले आर्मी का ही बंदा था ना, कैप्टन मेजर था इस नहीं 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 जर्मनी नहीं की आर्मी का। नहीं 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 नहीं। देखिए बेटा, अभी ये है कि वर्ल्ड वार 1 जो है वो आपकी शुरू होती है 1940 में, और वर्ल्ड वार 2 कब शुरू हुई? 19 39 में सर, 1939। 1939 में, है ना? 1939 में, यस 1939 सर, में। यस देखिए, सर। जब हिटलर बच्चा था तो वो लाइब्रेरी में जाकर वर्ल्ड वार 1 के बारे में पढ़ता था। उसका फेवरेट सब्जेक्ट जो था, जो टॉपिक जिस पे वो ज्यादा स्टडी करता था, वो था ही वर्ल्ड वार 1। अच्छा अच्छा। फिर भी बाद में इसको देखेंगे, चलेंगे। बट सर जो मतलब हमने सुना था कि जो ये बीच में सर वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बीच में जो टाइम था, इस टाइम में इसने जो स्टडी की थी पूरी वर्ल्ड वॉर 1 को, हाँ हाँ, तो उसके बाद जो इसने आर्मी आर्मी अपनी बनाना स्टार्ट की थी, और ये जो है बिल्कुल बिल्कुल इलेक्शन भी बिल्कुल। लड़ा था, जीता था फिर। हाँ, ये 1930 में इन्होंने जो है वो नाजी पार्टी से इलेक्शन लड़ना उन्होंने शुरू किए थे। 1933 में जो है वो एक जीता था। रेजोल्यूशन, जब उनकी जो पार्लियामेंट में आग लगी तो उसके बाद हिटलर को मौका मिला कि क्योंकि पार्लियामेंट को आग लगा दी गई है, तो फिर इस वजह से जो है वो हिटलर ने जो है वो पार्लियामेंट पर कंट्रोल कर लिया था। चलिए बेटा, ये थोड़ा सा इन चीज़ों को देखते हैं कि आपका एक्चुअली जो वर्ल्ड वार शुरू होती है वो होती है पोलैंड से। रशिया ने 1921 में जो है वो पोलैंड पर अटैक किया था, एंड देन एक मिलिट्रिज्म जापान में आ गई, क्योंकि जापान में अभी जो है वो आपके डिक्टेटर्स जो है वो आ गए, तो उस वजह से ये भी एक इसमें था। फिर बाउंड्रीज जो वर्ल्ड वार 1 के बाद बनी तो वो इरेशनल बाउंड्रीज थी। जैसे आप देखेंगे पाकिस्तान की जैसे आज़ाद हुआ तो हमारे यहाँ ड्यूरेंट लाइन का भी एक इशू रहा, बाउंड्री का। तो इस तरह की जैसे बाउंड्रीज बनी तो वो इरेशनल बनी थी, कोई डिफाइंड बाउंड्रीज जो है रिकग्नाइज बाउंड्रीज नहीं थी। देन एंटी सेमिटिक जो है वो व्यूज थे हिटलर के, क्योंकि वो यहूदियों से नफरत करता था। फिर 1949 में जो है वो चाइना आज़ाद हो जाता है, क्योंकि ये कल हमने जिक्र किया कि चाइना में भी सिविल वॉर चल रही थी। और फिर जर्मनी ने 1940 में एक पैक्ट किया था जापान के साथ, डिफेंस पैक्ट। सर और जापान और चाइना में चल रही थी। जी नहीं नहीं, जापान और चाइना चाइना। चाइना में ही चल रही थी, चाइना में ही चल रही थी। चाइना में 2 तरह के लोग थे, एक नेशनलिस्ट लोग थे, एक कम्युनिस्ट। एक कम्युनिस्ट लोग थे। ये जो कम्युनिस्ट लोग थे ये खेती बाड़ी जमींदारी वगैरह करने वाले जो मजदूर थे ये थे। तो यहाँ पर जो एग्रीरियन रेवोल्यूशन आया था चाइना में, तो इन्होंने क्या किया कि ये जो नेशनलिस्ट लोग थे इनको जो है ना उन्होंने ताइवान में भगा दिया था। ये चले गए थे ताइवान में। अब ये समझते हैं नेशनलिस्ट के एक्चुअल जो चाइना है वो ताइवान ही है। चलिए बेटा, थोड़े इसके इवेंट्स को देखते हैं कि वर्ल्ड वार 2 के इवेंट्स क्या हैं। एक है आपका कि 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मनी ने अटैक किया था, और फिर जब पोलैंड पर अटैक हुआ तो आपकी फ्रांस और इंग्लैंड ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। और फिर जब पोलैंड पर इसने अटैक कर दिया तो उसके बाद हिटलर ने डेनमार्क और नॉर्वे पर जो है उसने अटैक किया था। चलिए, आपके कोपेनहेगन जो है वो डेनमार्क का कैपिटल है, और ओस्लो जो है वो नॉर्वे का कैपिटल है, और पोलैंड का कैपिटल है वारसा, और आपका फिनलैंड का कैपिटल है हेलसिंकी। तो ये आपके बाद में वीडियो में सुन लीजिएगा। चलें जी, जन हम बेल्जियम और नीदरलैंड की बात करें तो उस पर जर्मनी कब्जा कर चुका था वर्ल्ड वार 2 के दौरान। फिर
यूएसएसआर जो है वो बाल्टिक स्टेट्स पर उसने, और फिनलैंड पर जिसका कैपिटल हेलसिंकी है उस पर जो है वो रशिया कब्जा कर चुका था। रशिया ने क्यों कब्जा किया था? क्योंकि पहले रशिया जो है वो सपोर्ट कर रहा था जर्मनी को। जर्मनी के अगेंस्ट में कब गया? 1941 में। जब 1941 में। हाँ, अभी मुझे कौन बताएगा कि बाल्टिक स्टेट्स क्या हैं? बेटा कैशिश, महक, सुरक्षा, एनिमन? Sir, Estonia, Latvia, and Lithuania. वेरी गुड। सुरक्षा, किसने? सुरक्षा ने बताया ना अभी। Yes, sir. ओके, यू आर इंटेलिजेंट। लेट्स सी के इटली ने जो है वो सपोर्ट किया जर्मनी को, और इसके जो डिक्टेटर थे वो थे मोसोलिनी, और मोसोलिनी ने भी जो टोटलिटेरियन गवर्नमेंट बनाई हुई थी। देखिए, जो रशिया में आपके जर्मनी में गवर्नमेंट थी वो थी हिटलर की। हिटलर भी आर्मी का जनरल है, और यहाँ पर इटली में जो है वो मोसोलिनी है, वो भी आपका इटली का जो है वो जनरल है। जब फौज की गवर्नमेंट होती है तो हम उसको कहते हैं डिक्टेटरशिप या टोटलिटेरियन गवर्नमेंट। ठीक है जी, चलें जी। फिर 1914 में जून में जो है वो फ्रांस पर अटैक किया था जर्मनी ने, और फिर जर्मनी ने जो है वो 14 जून को पेरिस पर कंट्रोल कर लिया था, और यहाँ तक के लंदन पर भी उन्होंने अटैक कर दिया था अपने जहाज भेजकर। 1914 में ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ था किसके दरमियान? इटली और जापान और जर्मनी के दरमियान। इन तीनों ने तय किया था कि अगर एक भी मुल्क पर अटैक होता है तो दूसरा मुल्क उसको सपोर्ट करेगा। तो इसी वजह से जापान और इटली जो है वो सपोर्ट कर रहे थे जर्मनी को। और फिर हाँ, और फिर इनको सपोर्ट करने के लिए रोमानिया भी आ गया था, और जर्मनी ने यूगोस्लाविया और ग्रीस पर भी अटैक कर गया था, और यूगोस्लाविया पर जर्मनी ने कब्जा भी किया था। और फिर लेबेनस्ट्रॉम, जैसे मैंने आपको बताया कि 1941 में लेबेनस्ट्रॉम पर जब जर्मनी ने अटैक किया हिटलर की फौज ने, क्योंकि हिटलर की फौज को चाहिए था एक बॉर्डर जहां पर वो अपनी फौज को ईस्टर्न एरियाज में अपनी जगह पर रोक सके। तो ये जो है जब जगह चाहिए उसकी, और वो जगह चाहिए थी उसको लेबेनस्ट्रॉम में। जब लेबेनस्ट्रॉम पर अटैक किया जर्मनी ने तो जोसेफ स्टालिन वो एक हफ्ते के लिए बेहोश हो गया, और फिर जाकर उसे उठाया गया कि साईं आप उठें, आपकी कंट्री पर जो है वो अटैक हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने जर्मन्स को पीछे धकेलना शुरू किया था, और फिर 1941 के बाद रशिया जो है वो चला गया था आपके अलाइड पावर्स के पास। फिर जो है चेकोस्लोवेकिया पर मार्च 2019 को जो है वो कब्जा कर लिया जापान ने। फिर दिसंबर 1914 को पर्ल हार्बर पर जो है जापान अटैक करता है। ये एक आपके पोर्ट था अमेरिका का, पर्ल हार्बर के नाम से। जब जापान अटैक करता है पर्ल हार्बर पर तो वो दावत दे देता है अमेरिका को वर्ल्ड वार 2 में आने की, और फिर अब वर्ल्ड वार 2 में अब अमेरिका भी आ जाता है, और वो भी अपनी मिलिट्री लेकर अटैक करना शुरू कर देता है। जापान ने जो है वो इंडो चाइनिया, लेओस, कंबोडिया और वियतनाम पर अटैक कर लिया था। देन उन्होंने मंचूरिया पर 1939 जो कि चाइना का इलाका है उस पर उन्होंने कब्जा किया था, और फिर इन्होंने चाइना पर हम 1937 में अटैक किया था, और फिर बर्मा पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। देखिए बेटा, बर्मा जो है वो एक्चुअली इंडिया का जो गवर्नर जनरल होता था वही गवर्नर जनरल जो है वो बर्मा का भी होता था। हमारे पास जितने हमने पाकिस्तान की पीएस की हिस्ट्री में हमने ब्रिटिश लॉज पढ़े हैं, एक्ट्स पढ़े हैं, देखिए 1935 का एक्ट, तो ये 1935 के एक्ट में उन्होंने बर्मा को आज़ादी का ऐलान किया था। उससे पहले बर्मा भी बरतानिया की कॉलोनी थी, और लेकिन इनके लिए गवर्नर जनरल और कॉन्स्टिट्यूशन जो वो एक ही होता था, जो इंडिया और बर्मा दोनों के लिए होता था। फिर इटली ने जो है वो अल्बानिया पर कब्जा किया था 1939 में। ये कंट्रीज देखें आप, आपके ये वर्ल्ड मैप है। ये सिचुएशन आपकी वर्ल्ड वार 2 की, जो कि 1941 के बाद की सिचुएशन है। चलिए जी,
1942 के बाद जो भी हुआ है, जर्मनी ने जितने भी इलाके फतह किए थे वो सारे के सारे जो है वो आपके जो है जर्मनी ने 1941 में फतह किए थे, 1942 तक फतह किए थे। 1942 के बाद फिर मैप में चेंजेस आना शुरू हुई हैं। ये देखेंगे जो रेड कंट्रीज आपको नजर आ रहे हैं, पोलैंड, यूएसएसआर का ये वाला इलाका जो है वो आपका लेबनोन कहलाता है, फिर फिनलैंड, नॉर्वे और ये आपके फ्रांस, इटली, ये सारे जो है वो एक्सिस पावर में यानी कि जर्मनी के कब्जे में थे। सर वर्ल्ड वार 2 में इंडिया भी थी ना, सपोर्ट कर रही थी ना बिल्कुल, हमारे यहाँ जो इंडिया है की वो आर्मी। जी 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 हमारे यहाँ अगस्त ऑफर जो है वो 1940 में आई थी। इस अगस्त ऑफर में क्योंकि लॉर्ड वेवल ने जो है अनाउंस कर दिया था कि इंडिया भी अब जंग लड़ेगा बरतानिया की तरफ से, वाइसरॉय ने अनाउंस किया था। लिनिथ को, सॉरी, हाँ, वाइसरॉय लॉर्ड लिनिथ को ने अनाउंस किया था कि, और उसके बाद फिर ये उन्होंने वाइसरॉय जो चेंज हुए थे, हमारे लॉर्ड वेवल थे, ये दोनों वाइसरॉय थे आपके सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, तो इसके बाइकआउट किया था उन्होंने। फिर बाद में उन्होंने डिस्कशंस की थी, अगस्त ऑफर भी भेजी थी। चलें जी, ये जो ग्रीन वाले हैं वो आपके अलाइड पावर्स हैं और ये जो येलो वाले हैं ये न्यूट्रल पावर्स हैं। देखा, अभी देख रहे हैं हम कि अलाइड पावर्स ने क्या किया था। वो जो हमने पहले इन्वेजन्स देखे हैं वो सारे आपके ताल्लुक रखते हैं एक्सेस पावर से, यानी कि सेंट्रल पावर्स से। अब देखते हैं कि बरतानिया ने क्या किया था। बरतानिया ने मिस्र की एक कॉलोनी, जैसे इंडिया बरतानिया की कॉलोनी थी, ऐसे ही लिबिया जो है वो मिस्र की कॉलोनी थी, तो बरतानिया ने लिबिया पर अटैक कर दिया था। चले जी, देन अलाइड ने जो है वो जर्मनी और इटली को पीछे धकेलना शुरू कर दिया था, और फिर यूएस ने मोरक्को पर अटैक किया था, और फिर बरतानिया ने इटली और सिसिली पर अटैक किया था। फिर बेनिटो मुसोलिनी जो इटली के डिक्टेटर थे उनको मजबूर कर दिया गया कि वो अपनी हुकूमत छोड़ कर चले जाएं। फिर सोवियत ने जो है वो ज़्यादातर जो यूरोप का हिस्सा था जर्मनी से वो वापस ले लिया। एंड देन 1944 में फ्रांस ने जो है वो जर्मनी ने जो है वो फ्रांस को छोड़ दिया था, और फ्रांस वालों ने जर्मनी से आज़ादी ले ली थी। फिर 29 अप्रैल 1945 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, सर और फिर इसी के दूसरे दिन नेक्स्ट डे पे हिटलर हिटलर ने जो है सुसाइड कर दिया। सुसाइड कर ली थी। बिल्कुल। और सर ब्रिटेन इसमें भी जो है, जर्मनी ही कसूरवार ठहरा था वर्ल्ड वार 2 में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर ब्रिटेन जो है उसने बर्मा को, इंडोनेशिया को और फिलिपाइन को जो है वो जापान से आज़ादी दिलवा दी। देन फिर जापान, क्योंकि अब भी हिटलर के सरेंडर, खुदकुशी करने के बाद जापान रह गया था, मुसोलिनी को हटा दिया गया तो इटली ख़त्म हो गया। अब हिटलर मर गया तो जर्मनी भी ख़त्म हो गया। अब रह गया मेन जो है वो आपका ईस्ट में जापान था, जो कि अब भी लड़ रहा था, और वो अमेरिका की फ़ौज की बड़ी तबाही कर रहा था। बहुत सारे अमेरिका की फ़ौजी उन्होंने मार दिए थे, और अब भी उनको कत्ल कर रहा था। तो अमेरिका के पास जिसकी वजह से चॉइस अमेरिका नहीं रही सिवाय ये कि वो आपके हिरोशिमा पर जो लिटिल बॉय के नाम से एक बम गिराया उन्होंने 6 अगस्त 1945 को, और फिर दूसरा बम जो है उन्होंने फेटमैन के नाम से नागासाकी पर गिराया। फिर उसके बाद फिर आपका जापान भी जो है वो सरेंडर कर देता है, और इसी तरह आपकी जो है वो अगस्त में आपकी जो जंग है वर्ल्ड वार 2 जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब देखें 1942 के बाद जैसे ही जर्मनी ने अपने इन्वेजन शुरू किए तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि जर्मनी को भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया, और फ्रांस वगैरह यूएसएसआर के ये जो इलाका था लेबनान वो भी उनसे छीन लिया गया। चले भी इसके बाद इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। याल्टा कॉन्फ्रेंस का जिक्र मैंने कल किया था, जो कि आपकी रशिया में ही साइन की गई थी। फिर इसमें जोसेफ स्टेलिन जो है वो एग्री हुआ था कि हाँ, मैं जापान के ख़िलाफ़ जंग लड़ूंगा। ये एक्चुअली अमेरिका जाता है स्टेलिन से बात करने कि आप भी जंग में हमें जापान के अगेंस्ट में सपोर्ट करें। तो बाद में ये फिर इसी के एग्रीमेंट के तहत जो है रशिया जो है वो सपोर्ट करता है अमेरिका को और अलाइड पावर्स को जापान के अगेंस्ट में। फिर जर्मनी और जापान और बर्लिन को जो है वो 4 जोन्स में
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। 2 जोन इसके जो है वो रशिया कंट्रोल करता है और 2 जोन जो है वो आपके बरतानिया और फ्रांस जो है वो कंट्रोल करते हैं। और इसी याल्टा कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है उन्होंने रशिया से एक चीज छुपाई थी कि अमेरिका जो है वो एटम बम बना रहा है। चलें जी। एंड देन फिर न्यूक्लियर इसी पावर। याल्टा कॉन्फ्रेंस में इन्होंने डिसाइड किया था कि यूनाइटेड नेशन बनाने हैं। यूनाइटेड नेशन जो है वो याल्टा कॉन्फ्रेंस के नतीजे में बनी है। ओके, तो लेट्स सी के इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि वर्ल्ड वार 2 के बाद फौरन ही कोल्ड वार शुरू हो जाती है, क्योंकि आप 2 सुपर पावर आपके सामने आ जाते हैं, या बायपोलर सिस्टम जो हम कल बात कर रहे थे कि बायपोलरिटी आ जाती है, जिसमें एक आपका यूएस होता है और दूसरा आपका रशिया होता है। अब ये 2 कॉम्पिटिटर हो जाते हैं, तो ये इन दोनों के दरमियान जो है आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर जंग चल रही होती है, जो कि कोल्ड वार कहलाती है। देन फिर राइज ऑफ सुपर पावर्स, जिनमें आपका अमेरिका और बरतानिया वो रिप्लेस कर देते हैं आपके अमेरिका और रशिया ये रिप्लेस कर देते हैं आपके बरतानिया और फ्रांस को। देन बायपोलर सिस्टम की मैं बात कर चुका हूँ। वार्सा पैक्ट जो है ये साइन होता है 1955 में, जिसमें रशिया कम्युनिस्ट कंट्रीज को लेकर एक मिलिट्री पैक्ट बनाता है, और उससे पहले नेटो बनाई गई 1944 में, 4 अप्रैल 1949 में, और ये जो है वो 28 कंट्रीज की, जो अभी मैं आपको बताकर आया हूँ, एक मिलिट्री पैक्ट है जो कि कैपिटलिस्ट कंट्रीज या को जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी उनका था। फिर बर्लिन को जो है 2 हिस्सों में, ईस्ट और वेस्ट बर्लिन में डिवाइड कर दिया जाता है और एक दीवार बना दी जाती है। फिर इसी वर्ल्ड वार 2 के बाद देखें कि डीकोलोनाइजेशन शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वो कॉलोनी जो बरतानिया के कब्जे में थी, जैसे मैंने आपको बताया कि बरतानिया ने जो है वो बर्मा को आज़ाद कर दिया, और फिर उन्होंने चाइना और आपके इंडोनेशिया और मलेशिया और ये जितनी भी कॉलोनीज थी वो आहिस्ता आहिस्ता कॉलोनीज, जापान की, आपकी फ्रांस की कॉलोनीज, आपकी बरतानिया की कॉलोनीज, वो सेपरेट होना, इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनना शुरू हो जाती हैं। और फिर यूएन की बुनियाद रख दी गई, जिसका काम क्या है कि थर्ड वर्ल्ड वार को रोकना, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि एनार्की को ख़त्म करे और पीस को मेंटेन करे। फिर ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो एज अ सुपर पावर्स लॉस कर जाते हैं। अभी भी सुपर पावर हैं, क्योंकि ये जो आपकी सिक्योरिटी काउंसिल है, 5 उसके परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के, तो वो भी, लेकिन मेन कॉम्पिटिटर जो है वो अब आपके रशिया और आपके अमेरिका है वर्ल्ड वार 2 के बाद। देन यूएस ने जापान पर कब्जा कर लिया, और फिर 1952 को जापान को उन्होंने आज़ाद भी कर दिया। फिर कोरिया जो है इसी नतीजे में आपके 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, नॉर्थ कोरिया जिसको रशिया कंट्रोल कर रहा होता है, साउथ कोरिया जिसको अमेरिका कंट्रोल कर रहा होता है। मैंने आपको कोरियन वार की बात की थी जब हम कोल्ड वार की बात कर रहे थे 1953 की, तो इसमें आप देखें कि नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट है क्योंकि रशिया कम्युनिस्ट है, साउथ कोरिया जो है वो कैपिटलिस्ट है क्योंकि अमेरिका कैपिटलिस्ट है। साउथ कोरिया पर अमेरिका का कब्जा था या अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा था। देन हम सिविल वार की हम बात कर चुके हैं, सिविल वार शुरू हो गई और 1949 में चाइना भी जो है वो अलग मुल्क बन जाता है। फिर इसराइल जो है 1948 में अलग मुल्क बना दिया जाता है आपकी फलस्तीन को लेकर। होलोकास्ट होता है इसी की दौरान, जो कि एक फाइनल सॉल्यूशन जो हिटलर समझता था, बहुत सारे यहूदियों को कत्ल कर दिया, तो इस वजह से यहूदियों के लिए एक फाइनल सॉल्यूशन जो निकाला गया वो था कि इसराइल की रियासत बना के दे दी जाए उनको। फिर जो यूएसएसआर ने कोई 6 जो है वो लाख का एरिया जो है वो बाल्टिक स्टेट का जो है वो कब्जा किया था। नाउ दे आर इंडिपेंडेंट स्टेट्स। देन पोलैंड को जो है वो कंपेंसेट किया गया था, जो इलाके उन्होंने जर्मनी से फतह किए थे वो इलाके कुछ जो है वो लेकर पोलैंड को दे दिए गए, क्योंकि पोलैंड से ही जंग शुरू हुई थी और यूरोसेंट्रिक सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि आपकी ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स जो कि यूरोप में कंसंट्रेट कर रही थी वो ख़त्म हो जाती है, अब वो बायपोलर में चली जाती है। यानी कि आपके अमेरिकन कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट में रशिया
अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अमेरिका। देन ट्यूनीशिया जो है वो 1943 में आज़ाद हो जाता है। चले जी, वर्ल्ड वार 2 के बाद के अफेयर्स देखें। ये मैं आपको बता चुका हूँ, यूएस ने बरतानिया को रिप्लेस कर लिया और यूएस ही पहला था जिसने एटॉमिक बम बनाया भी और फिर उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया भी। और फिर इस एटॉमिक बम ने वर्ल्ड की जो नेचर थी पावर की वो चेंज कर दी। अब देखें कि हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने के बाद जैसे ही रशिया ने ये देखा तो फौरन ही रशिया ने एटम बम बनाना शुरू कर दिया। और इसी तरह फ्रांस, बरतानिया और फिर आपके बाकी जो कंट्रीज हैं उन्होंने बनाया। फिर यूएस जो है वो चाहता था, यूएसएसआर चाहता था कि पूरी दुनिया में एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आए और फिर आपकी कोल्ड वार शुरू हो जाती है। वर्ल्ड जो है वो बाइपोलर सिस्टम में डिवाइड हो जाती है, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट में। देन बाइपोलर सिस्टम जो है वो आपका डोमिनेंट हो जाता है, एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं तो दूसरा कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। और बहुत सारी स्टेट जो है वो एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में इंडिपेंडेंट हो जाती हैं वर्ल्ड वार 2 के बाद। बेटा ये ख़त्म हो गया। एंड डू यू हैव एनी क्वेश्चंस?